Good morning students, I am your chemistry teacher Swati and this is part 5 of chapter surface chemistry. In this video you will study the property which is electrophoresis shown by colloidal particles. So electrophoresis is an experiment which confirmed the existence of charge on colloidal particles. So what basically has done in this experiment, when electric potential is applied across two platinum electrodes dipping in a colloidal solution, it is saying, see, this is a setup of electrophoresis. You can see a U-tube shape like structure, and in this U-tube solution is there which is a colloidal solution, and this is cathode and anode which is made up of platinum. So two platinum electrodes are there which is basically dipped in a colloidal solution. So when electric potential is applied or electric charge is applied to this setup or this cathode and the anode, you will see the particle or the colloidal particles move towards one or the other electrode. तो जैसे ही यहाँ करंट पास करेंगे सेटअप में तो आपके colloidal particles किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ने लग जाएंगे या जाने लग जाएंगे, whether it will be cathode or the anode. So this movement of colloidal particles under an applied electric potential is called electrophoresis. So इसी movement को हम क्या बोलते हैं, electrophoresis, because colloidal particles are now moving under an applied electric potential. जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया, then your colloidal particles are moving and that movement is known as the electrophoresis. So the movement of particle under an applied electric potential is called electrophoresis. The positively charged particles move toward the cathode while the negatively charged particles move toward the anode. जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस में करते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रहता है कि एनोड की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स जाएंगे और एनोड की तरफ नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे इसी तरीके से आपके पार्टिकल्स उसी चार्ज के कैथोड और एनोड की तरफ जाएंगे या मूव करेंगे. एंड दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ये एक सेटअप है, इसमें आप देख सकते हैं. When electrophoresis, that is movement of particle, is prevented by some suitable means, it is observed that the dispersion medium begins to move in an electric field. जब आप इसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करें किसी सुटेबल मीन्स की हेल्प से, ठीक है ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो मीडियम है डिस्पर्जन वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करने लग जाएगा और मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. फाइन. मैं दोबारा बता देती हूँ व्हाट इट इज सेइंग. व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मीन्स. सपोज हमने किसी तरीके से इसको रोक दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस रोक दिया या मूवमेंट ऑफ colloidal पार्टिकल्स रोक दिया हमने, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लग जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करने लग जाएगा. फाइन. और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. Now the next property, it is the coagulation or precipitation property. Now it is saying the stability of the lyophobic soles is due to the presence of charge on colloidal particles. अब लायोफोबिक सोल्स की स्टेबिलिटी किसकी वजह से एक्सप्लेन है, बिकॉज कॉलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज है, इसी वजह से आपकी लायोफोबिक सोल्स क्या है, वो स्टेबल है. इफ़ सम हाउ द चार्ज इज़ रिमूव्ड, अगर सपोज किसी तरीके से मैं चार्ज रिमूव कर दूँ, द पार्टिकल्स विल कम नियरर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स. तो जब आप उनके चार्ज को रिमूव कर देंगे तो पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे, दे विल कम क्लोजर एंड दे फॉर्म द एग्रीगेट्स और दे कोएगुलेट एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो जब तक चार्ज है तब तक लायोफोबिक सोल स्टेबल है. जैसे ही चार्ज हटाया किसी तरीके से, पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे, एग्रीगेट बनाएंगे या कोएगुलेट हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे विल सेटल डाउन. And this process of settling of colloidal particles is called the coagulation or the precipitation of the soul. इसी settling of colloidal particle को ही हम क्या बोलते हैं, coagulation or the precipitation of the soul. And the coagulation of the lyophobic soles can be carried out by the following ways. So इन तरीक़ों से हम lyophobic soul की coagulation को prevent कर सकते हैं. First is by electrolysis. The colloidal particles move toward oppositely charged electrodes, get discharged and precipitated. So colloidal particles जो opposite charge के होंगे वो different और अलग अलग electrodes की तरफ जाएंगे. They will move toward oppositely charged electrons and वहाँ जाके वो discharge हो जाएंगे और precipitate हो जाएंगे. Next, by mixing two oppositely charged soles,
अगर आप दो डिफरेंट ऑपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स कर दें इक्वल प्रोपोर्शन में तो क्या होगा, दे विल न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस एंड गेट पार्शली और कम्प्लीटली प्रेसिपिटेटेड. So oppositely charged sols when mixed in almost equal proportions, they neutralize their charges and get partially or completely precipitated. And it is saying mixing of hydrated ferric oxide, which is the positive sol, and arsenious sulfide, which is negative sol, bring them in the precipitated forms. तो जब आप दो सोल्स को मिक्स कर रहे हैं, एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है जो पॉजिटिव सोल है और आर्सेनियस सल्फाइड है जो नेगेटिव सोल है, इनको जैसे ही मिक्स करेंगे तो ये आपको एक क्रॉस प्रेसिपिटेटेड फॉर्म दे देगा. इस टाइप के कोएगुलेशन को हम बोलते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन, पॉजिटिव सोल एंड दी नेगेटिव सोल. वाई? नाउ नेक्स्ट इज बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग से भी आप कोएगुलेट कर सकते हैं लायोफोबिक सोल्स को. When a soul is boiled, the adsorbed layer is disturbed. जब सोल को आप बॉयल करेंगे तो जो adsorbed layer है वो डिस्टर्ब हो जाएगी due to increased collisions with the molecules of dispersion medium. बिकॉज अब कोलिजन्स बढ़ जाएंगे डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल से. जैसे ही डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल से कोलिजन बढ़ेंगे आपका जो एड्जॉर्ब लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जैसे ही एड्जॉर्ब लेयर डिस्टर्ब होगी तो चार्जेस जो हैं पार्टिकल के ऊपर से रिड्यूस हो जाएंगे. सो दिस रिड्यूसेस द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स एंड अल्टीमेटली लीड्स टू सेटलिंग डाउन इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. सो जैसे ही चार्ज आपकी रिड्यूस हो पार्टिकल के ऊपर से वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा और प्रेसिपिटेट बना देगा. नाउ नेक्स्ट इज बाय परसिस्टेंट डायलिसिस. अब डायलिसिस से भी आप ये रिड्यूस कर सकते हैं. ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस traces of electrolytes present in the soul are removed almost completely and the colloids become unstable and ultimately coagulate. तो अगर आप काफ़ी लंबे समय तक डायलिसिस करते रहेंगे तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट के ट्रेसेस प्रेजेंट है सोल के अंदर वो ऑलमोस्ट रिमूव हो जाएंगे, कंप्लीट रिमूव हो जाएंगे, और कोलॉइड आपका अनस्टेबल हो जाएगा और अल्टीमेटली कोएगुलेट होकर सेटल डाउन हो जाएगा. Next is by addition of electrolytes. You can also coagulate your soul by addition of electrolyte. It is saying when excess of electrolyte is added. जब हम excess of electrolyte add कर दें, the colloidal particles are precipitated. The reason is that, अब रीज़न क्या है इसके पीछे? It is saying colloids interact with the ions carrying charge opposite to that present on themselves. जैसे ही आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला कोलॉइड के अंदर, अब कोलॉइड में भी चार्ज है और इलेक्ट्रोलाइट के आयंस में भी चार्ज है, तो कोलॉइड का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के उस आयन से इंटरैक्ट करेगा जिसका जो उसके ऑपोजिट रहेगा. ठीक है ना. सो कोलॉइड इंटरैक्ट विद द आयंस कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू दैट प्रेजेंट ऑन देमसेल्फ एंड दिस कॉजेज न्यूट्रलाइजेशन लीडिंग टू देयर कोएगुलेशन. तो इससे क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और वो कोएगुलेट हो जाएंगे. And the ion responsible for neutralization of charge on the particle is called coagulating ion. जिस आयन की वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो रही है चार्ज की कोलॉइडल पार्टिकल के, उस आयन को हम क्या बोलेंगे, कोएगुलेट. So now I am discussing the another example which is BCl3. In BCl3 B is the central atom. So now here I am calculating the total number of electron pairs in boron. The valency is 3 and plus side atoms is again 3. You can see 6 by 2 it will be 3. So total number of electrons pair will be here 3. So when total number of electron pairs are 3, then shape will be what? It will be trigonal planar and shape will be like this only. So here will be your boron, chlorine and the chlorine. This will be the shape and angle between them will be 120 degree. Fine. In the linear it was 180 degree. So this is trigonal planar shape when 3 electron pairs are used as a bond pair. और सपोज अगर आप 3 बॉन्ड, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 हैं, 3 में से अगर 2 आपके बॉन्ड पेयर हो जाएं और 1 लोन पेयर हो जाएं, उस केस में आपकी शेप जो है बेंट हो जाती है या एंगुलर हो जाती है. सो इस केस में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे का जहाँ पे आपका एक लोन पेयर कंसिडर हो रहा है और 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं. तो आपकी शेप इस तरीके से रहेगी और सेंट्रल एटम के ऊपर आपका क्या रहेगा, एक लोन पेयर आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ BCl3 वेयर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आर 3. Now next example, if I take, it is of methane CH4. In this case, if I say this carbon is the central atom here and the total number of electron pair will be, this valency of carbon is 4 and hydrogen, the linked atoms are 4. You will see 8 by 2 it will give you 2. It will be 4. So total number of electron pairs in case of methane will be 4. So here the shape or the geometry will be tetrahedral like this manner. Here the angle will be 109.5 degree. 109.5 degree. This is the carbon, hydrogen and the hydrogen. This is the shape of methane.
So now there is a variation. Suppose there are four here are four total electron pairs and 4 के 4 ही बॉन्ड पेयर्स हो गए आपके. अगर 4 में से 3 बॉन्ड पेयर हो जाते और एक लोन पेयर हो जाता तो शेप यहाँ पिरामिडल हो जाती, पिरामिडल शेप हो जाती. इस केस में आपका एग्जाम्पल बनता है अमोनिया का, जो आप खुद ट्राई करेंगे. फाइन. और अगर सपोज 2 बॉन्ड पेयर हो जाते और एक लोन पेयर हो जाता है, इस केस में आपकी जो शेप है वो बेंट या एंगुलर हो जाती. अगेन फाइन, बेंट बोलते या उसे एंगुलर बोलते हैं आप. तो ये केस आपका रहता है वाटर में. ये भी आप खुद घर पे ट्राई करेंगे. ठीक है. सो ये आपके इसके अंदर फर्दर सब पार्ट्स थे. और ऐसे ही 3 का भी जो सब पार्ट है 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का, ये भी आप एंगुलर शेप देगा. ये भी आप खुद से घर पे इसका एग्जाम्पल ट्राई करेंगे. सो अब नेक्स्ट आपका आ गया 5 का, where 5 total number of electron pairs are there. So in the 5 you can take example of PF5 or you can take PCl5 also. PCl5 का एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, PCl5. अब ज़रा देखें फॉस्फोरस के अंदर, अगेन दिस इज़ द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम है. फॉस्फोरस के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 प्लस क्लोरीन कितना है? 5 by 2, it will give you 5. तो total number of electron pair in case of phosphorus will be the 5. तो 5 total pairs हैं और 5 ही आपके क्लोरीन है, तो पाँचों के पाँचों बॉन्ड बनाएगा. यहाँ शेप बनेगी इस तरीके से. This will be the trigonal bipyramidal. The shape will be the trigonal bipyramidal. The shape will be the trigonal bipyramidal. Just a minute. This is the trigonal bipyramidal. 2 bonds above the plane and 3 in the equatorial or the same plane. These 3 bonds are known as the equatorial bonds and these 2 bonds are the axial bonds. These are axial bonds and these are equatorial. ये equatorial पे है. These are equatorial bonds. Fine. So this is PCl5. Now again in this case there are sub parts. Suppose 5 bond pairs हैं, तो कुछ ऐसे आप examples ट्राई करेंगे जहाँ पे 5 bond pair में से 4 bond pair और 1 lone pair है. ठीक है. आपका 1 lone pair है जहाँ पे ये example ट्राई करेंगे आप, एंड 3 bond pair है और 2 lone pairs हैं, वो example ट्राई करेंगे. Now 2 bond pair एंड 3 लोन पेयर्स, इसका एग्जाम्पल आप खुद से घर पे ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट आपका हो गया जहाँ पे 6 हैं. 6 में आप लिख सकते हैं SF6. इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी सेंट्रल आइटम इज सल्फर. हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर विल बी 6, फ्लोरीन आर 6 डिवाइड बाई 2. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे आपके कितने आ गए? 6. तो 6 के 6 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो टोटल बॉन्ड बनाएंगे आपके. सो आप यहाँ पे सल्फर SSS यहाँ पे आपकी शेप बनेगी. दिस इज़ दी स्क्वायर पिरामिडल. सारे फ्लोरिंग्स आप यहाँ पे लगा दें. दिस विल बी दी स्क्वायर पिरामिडल. फाइन. दिस इज SF6. यार 6 के 6 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे और 6 के 6 ही आपके बॉन्ड पेयर बन गए हैं. तो यहाँ पे भी सब पार्ट्स हैं, वो भी आप खुद से घर पे ट्राई करेंगे कि अगर सपोज 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, और अगर 4 आपके बॉन्ड पेयर हैं या 2 लोन पेयर हैं, या फिर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 3 ही लोन पेयर हैं, या फिर 2 बॉन्ड पेयर हैं और आपके 4 लोन पेयर्स हो गए. तो ये सारे शेप्स, आप सब शेप्स हैं, आप डिस्कस करेंगे खुद से, एग्जाम्पल ट्राई करेंगे और जहाँ भी डाउट होगा मुझसे आप पूछ लेना. थैंक यू सो मच.